Now, verse number 12 of chapter number 5. युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलो फले सक्तो निबध्यते. युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, the person, the meditator, the sadhak who is yukt, who is united with consciousness of God, that person is yukt, who is free from the bondage of fruits of actions of whatever result from that. If a person is free, that is known as युक्त, जो सभी कर्म के बंधनों से मुक्त है, कर्म के फल से जुड़ा हुआ नहीं है और भगवान से युक्त है, भगवान की भक्ति में लीन है, उसे युक्त कहा गया. युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, that person is renunciating the fruits of actions, the results of actions. Yuktah karma phalam tyaktva, that person abandons, renunciate the fruits. He is not related, he is not connected to it. Though that person receives the actions, results, but that person is not concerned with the actions, results of action. That person is not concerned with the result of that. Is yukt. He is directly at, he is ultimately handing over all the result to the God. That person is keeping all the result at the feet of God. Now, surrendering all the actions and its results to the God. Yuktah karma phalam tyaktva shantim apnoti naistikim. That person, shantim apnoti, receives the utter peace. वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है. नैष्ठिकीम, that is everlasting, that peace never ends. Who receives that everlasting peace? So that is obtained by the person who is united with God, is receiving the peace, ultimately obtains the peace which is everlasting. Ayuktah kam karein, and the person who is not united, who is absorbed in ignorance, who is covered with ignorance, that is ayukta. Kam karein, due to various desires, do the work. That person is propelled for action under directorship of desire. So that person who is not united with God, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं है, वह अपनी कामनाओं के द्वारा कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है. फले सक्तो निबद्धते, एंड दैट पर्सन इज सक्तो, एज दैट पर्सन इज अटैच्ड टू fruits of actions. Ultimately निबध्यते, that person becomes entangled, वो उसी में उलझ जाता है. जो युक्त है, भगवान से जुड़ा है, वो अपने कर्म फलों का त्याग करके वो शाश्वत शांति प्राप्त करता है. और जो अयुक्त है, वह काम्य कर्मों को करता हुआ, कामनाओं के द्वारा कर्मों को करता हुआ फल से बंध जाता है. दैट इज लॉर्ड कृष्णा सेज. नाउ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज giving up the result of work by becoming resolute in faith. One attains peace. The person who is resolved is attaining peace arising from steadfastness. One who is lacking in resolute faith, being attached to, and that person get attached to result under the impulse of desire and ultimately becoming bound. So that person is generating the samskar, the traces of work, because he is bound to action, So that person makes the samskar and traps in the circle of life and death, and incarnation, reincarnation, and in this way, because that person is bonded. So उसको फलों का, अपने कर्म के फलों को चाहिए, उसका कर्मों का मोल चाहिए. तो जो फल उसे अभी नहीं मिलते, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को जिनको फल चाहिए,
भगवान उनको फल देते हैं, कहते हैं ठीक है तुम्हें फल चाहिए तो फिर से जन्म लो और जो फल बचे हुए हैं उनको करो। उन फलों को भोगने के लिए वो इस धरती पर आता है। दिस इज भोग्या वसुंधरा, ये लोगों के द्वारा भोगी जाने वाली धरती है। तो इसलिए ये भोग योनि है, यहाँ वो आता है और उन कर्मों के फलों को भोगता है जिनको उसने अपने द्वारा किया हुआ माना। उसने बोला मैंने कर्म किया है, मैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र हूं, तो मुझे इसका फल भी चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, तुमने किया है तो ठीक है, जो फल नहीं मिले हैं अगले जन्म में आओ उनके फल भोगो। However, due to desire, that person does new actions, and under those new actions, he is now claiming that now I will get the fruits of those action. लेकिन जब नए जन्म में वो आता है तो वो नए कर्मों को भी करता है और वो भी कामनाओं के वशीभूत होकर करता है, फिर उनके भी फल तैयार हो जाते हैं, फिर उनको खाने के लिए भी उसको फिर से आना पड़ता है। इस प्रकार से वो जन्म मरण के बंधन में फंसता चला जाता है और अपने मूल उद्देश्य को छोड़ देता है। उसका मूल उद्देश्य फलों को प्राप्त करना नहीं, फलों का सुख भोगना नहीं, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य प्रभु से एकाकार होना है। तो वो कर्म बंधन की ओर चला जाता है। अयुक्त होने पर जो अज्ञान से ढका हुआ व्यक्ति है वो इस प्रकार से करता है, जबकि युक्त व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान से होता हुआ देखता है, इसलिए उनके फलों की आशा नहीं करता। यद्यपि फल उसको भी मिलते हैं पर वो फल से जुड़ा नहीं है। द पर्सन हु इज यूनाइटेड विद गॉड, हु इज रिजोल्यूट, दैट पर्सन हैज नो कंसर्न विद द फ्रूट्स, हेंस दैट पर्सन इज नॉट इम्पेल्ड टू अल्टीमेटली रिसीव दैट फ्रूट्स। उसे कर्म का फल मिले या ना मिले उसका उनसे कभी कंसर्न ही नहीं था। यदि जन्म मिला तो फल मिल जाएगा, अन्यथा वो वहीं से अपनी यात्रा समाप्त करके ईश्वर की ओर चला जाता है, ईश्वर से यूनाइट हो जाता है। How is to be understood that performing the same action, some people are bound in material actions and others are released from material bondage? Doing the same action, some are released। कार्य तो वही है जो एक साधक करता है और एक सामान्य व्यक्ति करता है, संसारी व्यक्ति, लेकिन एक उन कार्य कर्मों को करते हुए कैसे प्रभु की ओर चला जाता है और दूसरा कैसे संसार से जुड़ता चला जाता है, वो बंधन में बंध जाता है। ऐसा कैसे होता है? श्री कृष्णा गिव्स द आंसर इन दिस वर्स। दोज हु आर अनअटैच्ड एंड अनमोटिवेटेड बाय मटेरियल रिवार्ड्स आर नॉट बाउंड बाय कर्म, but those who crave rewards and obsessed with desire to enjoy material pleasure becomes entangled. So those who are unattached, they do not want the fruits of action, they are doing it for pleasing God। वो अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं। वे ये जानते हैं कि सागर में उठने वाली हर लहर समुद्र रूपी प्रभु का विलास है। तो सागर में उठने वाली लहर जैसे सागर को आनंदित करती है, उसी प्रकार से भक्त का जीवन भगवान को आनंदित करता है। दैट डिवोटी नोज दैट दीज एक्शंस एंड रिएक्शंस आर अल्टीमेटली टिटिलेटिंग गॉड। ये भगवान को स्पंदित कर रहे हैं भगवान भक्त के द्वारा, उसका उसके फल से खुद कुछ लेना देना नहीं है। हर लहर गहरे में कहीं ना कहीं सागर ही है। हम सब सागर हैं। वी आर स्पार्क्स गॉड, हम उस भगवान के कण हैं। सो स्पार्क सत्व, स्पार्क चित एंड स्पार्क आनंद। वी आर, हम यदि वो सच्चित आनंद है तो हम अणु सत, अणुचित और अणु आनंद है। सो वी आर सेम। हर लहर खुद ही सागर है, कहीं ना कहीं वो सागर का स्वरूप है, वो सागर का विलास मात्र है। द डिवोटी नोज इट and is not trapped by the actions because these waves are ultimately proliferating due to the energy of sea। हर लहर समुद्र की ऊर्जा से ही विलास करती है, खेलती है, अटखेलियां करती है। तो लहर का अपने में अस्तित्व नहीं है, वो सागर की शोभा मात्र है। इसलिए हम सब भगवान की शोभा है। Those who are unattached and unmotivated by material rewards are never bound by karma। They who do not want, who know that they are not doer, they who are free from doership, जिनमें कर्तृत्व की भावना का अभाव है, वे फल से भी नहीं बनते। वे जानते हैं कि ईश्वर की शक्ति से कार्य हो रहा है, तो इसके फल भी ईश्वर को ही जाएंगे।
दो द लॉ इज सेम, यदि जमीन पर जितनी तेजी से बॉल मारो, गेंद को फेंकने पर उतनी ही तेजी से वो टकरा कर उछलती है। द लॉ इज सेम फॉर द पर्सन हु इज युक्त एंड अयुक्त। जो युक्त है और जो अयुक्त है, उन दोनों के लिए प्रकृति के नियम तो वही है। यदि जमीन पर गेंद मारते हैं तो उसके बाद वो उससे संघट्ट करके टकरा कर उतना ही उछलती है। फिर भी बॉल मारने के बाद भक्त वहां से चला जाता है, उसके संघट्ट का प्रतिफल का इंतजार नहीं करता। जबकि संघट्ट के बाद उसने संघट्ट ही इसीलिए किया था अयुक्त ने कि उसका प्रतिफल मिले, वो उसका इंतजार करता रहता है। वो फल उसके लिए सुखदायी भी हो सकता है, दुखदायी भी हो सकता है, तो वो फल से बंध जाता है। जबकि भक्त, उसको भी फल मिलेगा लेकिन वो बंधता नहीं, क्योंकि उसने जब कर्म में when we do work with our mental consciousness, जब हम मन को उसमें संकल्पों को जोड़ देते हैं तब हम फल से बनते हैं। और जब संकल्प प्रभु के रहते हैं, हम ठेकेदारी नहीं करते हैं, वी आर फ्री फ्रॉम एजेंटशिप। जब हम ठेकेदार नहीं है, हम सिर्फ प्रभु की ओर बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। वी आर फ्री फ्रॉम एनी डिजायर, इच्छाओं से नहीं बंधे हैं, ठेकेदार नहीं मान रहे हैं। ऐसे में उसके फल भी हमें नहीं बांधते। जो भगवान को देना होता है वो देते हैं, कर्म करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि हम सही तरीके से अपने मन से उसे न बांधे तो फल के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, फल भगवान को ही जाते हैं। कर्म जब भगवान को अर्पित हो गए तो फल हमारे कैसे हुए। जो चीज, जो प्रसाद आपने मंदिर से मिठाई खरीदी, भगवान को अर्पित करने के बाद वो प्रसाद हो जाती, तो वो अर्पित हो जाती। नाउ the word yukta means united in consciousness with God. It can also mean not wanting any reward other than purification of heart. So the युक्त, the devotee, वो भक्त जो भी कार्य करता है वो हृदय की शुद्धि के लिए करता है। That person does the work not for fulfilling desire, not for body happiness. वो bodily happiness के लिए कार्य नहीं करता, शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, मन की तुष्टि के लिए और बुद्धि की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता। वो अपनी आत्म शुद्धि के लिए कार्य करता है। वो जानता है कि शरीर के मिले हुए ये सभी साधन, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये उसकी आत्म शुद्धि के लिए मिले हुए हैं। वो उनको लक्ष्य मानकर कार्य नहीं करता, वो आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करता है। धूमे न व्रियते वहीं यथा दर्शो मलेन च यथोल वेना व्रतो गर्भ तदोल तेनिदम तदा तेनिदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, दर्पण मल से ढका रहता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है और धीरे धीरे इनके हट जाने पर ज्ञान उदित हो जाता है। वैसे ही साधक इन सभी के द्वारा अपने ज्ञान के ऊपर ढके हुए ज्ञान के पर्दे को हटाने का प्रयास करता है, आत्म शुद्धि का प्रयास करता है। Person who are yukta relinquish desire for the reward of their actions and instead engage in work for the purpose of self purification. They relinquish desire. Who are yukta, they do not want any fruits for their body. Body is ephemeral. Mental capacity, mental consciousness, these are tools, ephemeral. We have to leave this with this corpus body. Our body, जो ये शरीर है, ये मृत प्राय है। इसके साथ ही साथ हमें अपने मनोचेतना, बुद्धि चेतना, शरीर और इंद्रियगत चेतना को छोड़ना होगा। इसलिए जो युक्त व्यक्ति है वो इनकी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, इन यंत्रों की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, क्योंकि ये यंत्र तो नए शरीर के मिलने पर फिर हमें मिल जाएंगे। इसलिए वो भगवान के लिए कार्य करता है। वो दूर का सोचता है, वो पास का नहीं सोचता, वो लंबी कई वर्षीय योजना चलाता है। Now therefore they soon attain divine consciousness and eternal beautitude. So वो आंतरिक सुंदरता को प्राप्त कर लेता है, eternal beautitude which is eternal, जो कि शाश्वत भी होती है। जब हम कर्मों का त्याग कर देते हैं, वही मिठाई खरीद लो तो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करने के बाद जब वो प्रसाद हो जाती है तो लोग मांग मांग कर खाते हैं। उसी प्रकार से उसके कर्म जब ईश्वर को अर्पित हो जाते हैं तो वो सोने जैसे कीमती हो जाते हैं, उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है और उनमें पोटेंशियल बहुत हो जाता है। उन कर्मों को जो भगवान को अर्पित है उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे पुराने से पुराने बंधनों को काट देता है। तो इसलिए हम कर्मों को भगवान की शक्ति के साथ होता हुआ देखें और स्वयं को यंत्र रूप माने। ऐसे में हमारी कोई
भी बंधन नहीं होगी या किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं होगी। बस होता तो यही है, बस हम अज्ञानता की वजह से खुद को करता हुआ मानते हैं। On the other hand, युक्त means not united with God in consciousness. It can also denote desiring mundane rewards not beneficial to soul. The ayukt who is not united with God is desiring mundane reward. That person जो भगवान से युक्त नहीं है, वो इच्छा करता है कि उसके द्वारा किए गए कर्मों के सभी फल उसे प्राप्त हों। एंड those fruits which may be beneficial to soul or not, तो ये जो फल प्राप्त होते हैं ये वास्तव में आत्मा के बंधन का कारण होते हैं। वो उसको शरीर से बांधते हैं कि पहले कर्म किया, कर्म से भी बंध गए। कर्म से कैसे बंधे? क्योंकि हमने ईगो अहंकार के द्वारा अहंकार के अंतर्गत कार्य को किया। फिर शरीर से भी बंधे क्योंकि अब हमें शरीर के लिए भोग चाहिए, जो अपने कर्म किए हैं उनकी कीमत चाहिए। तो वो सौदागिरी करता है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। द डिवोटी इज ऑलवेज डूइंग दिस, दो दैट पर्सन is moving in this world, walking in this world, doing all business in this world, but free from the bondage। वो दुनिया में घूमता है पर एक दर्शक की तरह, एक दृष्टा की तरह घूमता है। वो व्यापारी की तरह नहीं घूमता कि ये लेंगे तो वो होगा। उसके अपने कोई निजी कैलकुलेशंस नहीं है। वो एक दृष्टा की तरह विहार मात्र करता है। वो सागर में उठने वाली हर लहर भगवान का विलास होती है, उसका कोई अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। एंड दैट पर्सन बिकम्स फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो जीवन और मरण में भी नहीं पड़ता। द नेक्स्ट वर्स इज 5.13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य अस्ते सुखम वशी। द पर्सन हु इज सर्व कर्माणि, सभी कर्मों का मन से त्याग देता है। संन्यास्य, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य अस्ते सुखम वशी। सर्व कर्माणि, सभी कर्मों का मन से त्याग कर देता है। यानी कर्म तो करता है लेकिन मन से उसकी उस पर आसक्ति नहीं है। जैसे कि एक पंसारी की दुकान में खड़ा हुआ नौकर, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि शाम को मालिक का फायदा होता है या नुकसान होता है। वो शाम को घर जाके नहा धो के नए कपड़े पहन के निकल जाता है। उसको लेना देना ही नहीं है कि मालिक को मुनाफा हुआ या नुकसान। उसने मालिक को खुश कर दिया, बात खत्म। हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे मन में हर बार ये होनी चाहिए कि ये कर रहे हैं तो भगवान को कैसा लगेगा। क्या हम उनके ओबेडिएंट स्टूडेंट हैं? हम उनके आज्ञाकारी शिष्य हैं? हमेशा जब भी प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो लिखा जाता है तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य, क्योंकि ये सेंटेंस, ये वाक्य ही आह्लादित करने वाला होता है प्रधानाचार्य को या हमारे क्लास टीचर को, कक्षाध्यापक को। तो हम ये देखें कि क्या तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य हूं। हमारे हर कार्य में ये झलकना चाहिए, ये प्रभु के लिए हो रहा है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य, वो अपने मन से कुछ नहीं करता, वो प्रभु की प्रेरणा से करता है। स्वामी जी ने भी घर छोड़ा तो बोला ये ऊपर से प्रेरणा हुई है, माँ की प्रेरणा हुई है और हमें उन्हीं को खुश करना है। तो स्वामी जी ने घर छोड़ दिया, भाई हमको सन्यास के लिए जाना है, तो उसको ऊपर से प्रेरणा भी मिलती है। वैसे तो हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो युक्त हो जाता है तो भगवान उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं कि कैसे इसके रथ को अपनी ओर मिलाया जाए। इस बच्चे को, जब बच्चा गिरेगा तो माँ बार बार पुकार लगाएगी, उठो मेरी ओर आओ। वो उसको गाइड करती है, उसको प्रेरणा देती है। वैसे ही जो युक्त व्यक्ति हैं वो मन से कार्य नहीं करते, क्योंकि जो मन है वो शरीर की ओर ले जाने वाला होता है। और इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। इंद्रियाणि पराण्याहु, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। इंद्रियेभ्यः परम मना, मन सस्तु परा बुद्धि, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। तो जो जितना सूक्ष्म है वो उतना शक्तिशाली होता है। उसके कर्म जो होते हैं, चाहे बुद्धि हो या बुद्धि के द्वारा हो रहे हो, विवेकनी बुद्धि के द्वारा, वो इंद्रियगत होते हैं, वे शरीर की ओर नहीं होते हैं।
मन शरीर की ओर ले जा रहा है, जबकि विवेकनी बुद्धि इंद्रियों की ओर ले जाती है। इस तरीके से वो अपनी आत्म शुद्धि के लिए, भगवान से मिलने के लिए कार्य करता है। कितनी सुंदर बात कही है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी। That person who is unified with God, that is renunciating or the work by मेंटल कॉन्शियसनेस, वे सभी कर्मों का मन से त्याग कर देता है, मन से उसका लगाव नहीं है। जैसे कि एक साधक साधु पानी पर लकीर खींचे, तो लकीर खींचते खींचते ही वो मिट जाती है, तो उसका उससे लगाव ही नहीं है कि उसने कर्म किया है। ऐसे में अगर कोई पूछता है साधु से कि आपने तो मेरे परिवार का इतना भला किया, तो वो इधर उधर देखने लगता है कि ये मेरे लिए ही कह रहे हैं कि और किसी के लिए कह रहे हैं। उसमें कर्तव्य भाव का अभाव होता है, उसका किसी से लेना देना नहीं होता, कर्तव्य का भाव नहीं होता। इस प्रकार से सभी कर्मों का जो मन से त्याग कर देता है, सुखम वशी, वह सुखी हो जाता है। अस्ते सुखम वशी, एंड दैट पर्सन इज सेल्फ कंट्रोल्ड। नव द्वारे पुरे देही, दैट इज दिस इज द बॉडी विद 9 गेट्स। हमारा शरीर, इसमें 9 द्वार बने हुए हैं। जैसे कि 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका छिद्र हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में एक मूत्र द्वार है, मल द्वार है और मुख द्वार है। ये 9 द्वार हैं। इस 9 द्वार वाले नगर में जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, जो युक्त है, उसमें भी वो अपने आप को वश में कर लेता है। उसके सभी साधन आत्मागत होते चले जाते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं आत्मा में रोशनी की तरह होती जाती हैं, आत्मा को खोल देने वाली होती हैं, आत्मा के आवरण को भस्म करके उसे प्रकाशमान कर देने वाली होती हैं। तो कितना अच्छा कहा है, नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कार्यन। 9 द्वार वाले इस शरीर में न तो वो कुछ खुद करता है और न करवाता है। वो करवाता भी नहीं है कि किसी चीज के लिए प्रेरणादायक बने कि हम इस कार्य को करवा रहे हैं, ये मंदिर बनवा रहे हैं, न कुछ कुछ करता है। दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम डूअरशिप। दैट पर्सन हु हैज रिनिशिएटेड एवरी वर्क एट द फीट ऑफ गॉड, जिसने भगवान के प्रति अपने कर्मों का समर्पण कर दिया है, वो इस संसार में न उसके लिए कुछ करने योग्य है न करवाने योग्य है। वो व्यक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ रहता है और आत्म शुद्धि करता रहता है, अपने पथ पर, अपने लक्ष्य पर भगवान की ओर निरंतर बढ़ता रहता है कर्मों के सहारे। इसलिए ये न कहा जाए कि कर्म बंधन के कारण होते हैं, ये हमारा नजरिया है। इट इज अवर पर्सपेक्टिव, इट इज अवर आउटलुक विच डिसाइड्स वेदर दिस वर्क इज कटिंग अवर बॉन्डेज, दिस वर्क इज फ्रीइंग अस फ्रॉम टेंटिकल्स, और दिस वर्क इज बाइंडिंग अस। कर्म वही है, हम चाहें तो उससे अपनी जंजीरों को, जिन सोने की जंजीरों में हम फंसे हुए हैं, उनको तोड़ लें, और या फिर हम कर्म से खुद को भी बांध लें। तोड़ सकता है तो पहले तोड़ ले तू कैदोबंद, बेड़ियों के साज पर नगमाए आजादी न का। हम अगर तोड़ सकते हैं तो अपने कैदोबंद, अपने बंधनों को तोड़ लें। ऐसा न करें कि बेड़ियां भी पड़ी हुई हैं और आजादी के नगमे भी सुनाए जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि कर्म रूपी चाकू से अपने बंधनों को काट लें और अपना गला ना काटें। नाउ the literal meaning of this verse is the embodied man of self control, having given up all actions mentally, continues happily in the town of 9 gates without doing or causing to do anything at all। बताया गया है कि जो मन में संस्कार हैं वही विक्षेप पैदा करते हैं। मन जब किसी कार्य में लग जाता है, जुट जाता है, तो वो विक्षेप का कारण होता है। इसलिए मन से दूर रखते हुए हम प्रभु की शक्ति के सहारे जो कर्तव्य कर्म हैं, हमारे कर्म जो है कर्तव्य कर्म होने चाहिए, हमारे कर्म निष्काम कर्म होने चाहिए, काम्य कर्म नहीं होने चाहिए। वे कामनाओं पर आधारित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम कामना करते हैं तो हमारी कामनाएं, कामना क्या है, ये मन से जनित होती हैं, ये प्रस्फुटित होती हैं, इनका अंकुर मन में होता है। और वे मन किसके लिए कार्य करता है, हमारी इंद्रियों के विलास के लिए कार्य करता है, भौतिक सुख के लिए कार्य करता है। इसलिए जब मन की जमीन पर हम कोई अंकुर ऐसा फूटने ही नहीं देते हैं, कामना का अंकुर फूटने ही नहीं देते हैं, तो ऐसे कर्म हमारे जीवन में विक्षेप या संस्कार पैदा नहीं करते। सो दोज वर्क डू नॉट डू, दोज वर्क
डू नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ ट्रेसेस और संस्कार, तो वो संस्कार से रहित होते हैं, और जो कर्म संस्कार से रहित है वे पावन है। कर्म कर दिया, हमें क्या लेना देना, हमें क्या मिलेगा, मालिक को मिलेगा, हमको क्या लेना देना, हमने अपना काम कर दिया। अब टीचर चाहे तो उस प्रश्न पत्र में जो हमने उत्तर पुस्तिका लिखी है जैसे नंबर दे, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो टीचर का काम है। हम ये ना सोचें कि वो अच्छे नंबर नहीं दे रहा है तो ऐसे वो क्यों कर रहा है, हमने तो इतनी मेहनत की। कई बार हम सोचते भी हैं हम तो पूरी जान लगा दे रहे हैं, नंबर अच्छे हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हम किस पादान पर हैं, कहाँ पर हैं। हम निरंतर अपने विकास की ओर ध्यान दें, जो हमको अब मार्क्स मिलते हैं जैसा भगवान देता है, हम उसके आधार पर धीरे धीरे वैसे अगले प्रश्न पत्र का निर्माण होगा, हम सिर्फ उसके ऊपर समर्पित रहें। हमारे आराध्य प्रभु हैं, तो बच्चा माँ की ओर देखता रहे, माँ की गोद में रहे, यही सबसे बड़ी बात है। हमको हमको कर्म आनंद नहीं दे सकते हैं, हमको माँ की गोद आनंद दे सकती है। हमको जो शाश्वत आनंद है वो माँ की समीपता से ही मिल सकता है। भौतिक जो भी यहाँ पर विलास हो रहे हैं वो हमें कैसे आनंद दे सकते हैं। तो जैसे शिशु माँ की ओर उन्मुख होता है, वैसे ही एक भक्त को भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए अपने शाश्वत आनंद के लिए। और हम इस विकास की पाठशाला में दिस द स्कूल ऑफ इवोल्यूशन वी आर स्टूडेंट्स, so we should always try to happy our class teacher. So in this way we have to do all our works, all our duties with full energy. हमें पूरे प्रयास से ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। प्रश्न परीक्षा पत्र या प्रश्न पत्र वो उनकी जिम्मेदारी है, हमें क्या अंक दिए जाते हैं, हम जहां होंगे जैसे स्तर पर होंगे उसका वैसा ही मूल्यांकन होगा और हम बढ़ते चले जाएंगे। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इतने विकास के अधिष्ठाता के स्कूल में हमको प्रिविलेज्ड एडमिशन मिला है। हम एक ऐसे विद्यार्थी बने हैं जिसको पीएचडी जैसे गुरु मिले हैं, और ऐसे अच्छे गुरु के इतने अच्छे परिवार में हमको साधना धाम मिला है, वहां आने जाने का मौका मिला है, ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसी पुस्तकें मिले हैं। इससे ही हमें गदगद हो जाना चाहिए और उनकी पुस्तकों को पढ़कर उनके सभी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वैसे ही बरतना चाहिए। हमें स्वयं ही प्रभु के प्रति समर्पण आता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रभु से युक्त भी होते चले जाएंगे और अपना उत्तरोत्तर शीघ्रता पूर्वक विकास करते चले जाएंगे। Shri Krishna compares the body with the opening to a city of 9 gates. The soul is like the king of city. Very good said. ये जो हमारी आत्मा है इस 9 द्वार वाले शरीर में राजा की भांति है, इसमें उसका शासन चलता है, लेकिन उसके मंत्री कैसे हैं? द मिनिस्टर्स आर ईगो, उसका एक मंत्री अहंकार है, वो ना हो, यदि अहम भाव ना हो तो शरीर की क्या आवश्यकता है। तो उसके मिनिस्टर कौन कौन से? ईगो मिनिस्टर। द अदर मिनिस्टर इज इंटेलेक्ट मिनिस्टर, बुद्धि मंत्री, अहंकार मंत्री, माइंड। उसी तरीके से जो मनोगत मंत्री, मन मंत्री, एंड द सेंसेस प्राण मंत्री हैं, और शरीर ऊर्जा मंत्री। द लास्ट वन इज द लाइफ एनर्जी मिनिस्टर। सो दिस बॉडी इज प्रोपेल्ड by group of 5 ministers. Those 5 ministers are ego minister, intellect minister, अहंकार मंत्री, बुद्धि मंत्री, मन मंत्री, एंड द सेंसेस जो हमारे प्राण है, और शरीर ऊर्जा। तो इन पांचों मंत्रियों के द्वारा ये चलाया जा रहा है। However, these ministers are under the proprietorship और कंट्रोल ऑफ सोल। ये सभी मंत्री आत्मा के लिए मिले हैं, तो इसे आत्मा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, अपने उत्थान के लिए इस्तेमाल करे, न कि शरीर के आनंद के लिए। सो दिस बॉडी इज प्रोपेल्ड बाय दीज मिनिस्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 9 गेट सिटी। ये 9 द्वारों वाला शहर कहा गया है, जो मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता है, और राजा स्वयं आत्मा। द रेन ओवर द बॉडी कंटिन्यूज अंटिल टाइम इन द फॉर्म ऑफ डेथ। ये शासन तभी तक है जब तक हम जीवित हैं। आफ्टर दैट दिस रेन इज स्नैच्ड अवे। After that the king is, the soul is getting out of this city. इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी और फिर वो कोई दूसरा 9 द्वार वाला शहर तलाश करेगी। Now, and however, even when the reign continues, the enlightened yogi do not see themselves as body. वहां का सत्संग मौसी 9 बजे शुरू होगा है हमारा। कितने बजे शुरू है मौसी वहां बस सत्संग? 9 बजे बस चालू होने वाला है। चालू होने वाला है, तो यहीं हम इसको समाप्त करते हैं। हाँ हाँ हाँ, पूर्ति कर दो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं त्वदिष्टं भवतु गोविन्द त्वदिष्टं भवतु गोविन्द नतमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां तेरी इच्छा पूर्ण हो मां हम सब तेरी शरण में। श्री राम। बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद शिव कुमार, बहुत सुंदर, कितना सुंदर सामंजस्य। और ये इस चीज को फिर से अगले सत्र में भी लेंगे। हाँ, नवद्वार वाला चीजें जो बताई हैं मंत्री, ये बहुत अच्छी नई चीज, बिल्कुल समझने के लिए हमेशा याद रहेगी। चलिए मिलते हैं इसको फिर हम और लोग, हैं बहुत अगले बहुत पक्ष में फिर से इलाबोरेट करेंगे अगले सत्र में इसको। चलिए, राम श्री राम राम राम। राम राम। कुमार राम राम, बहुत सुंदर। राम राम बहन जी, राम। हरिद्वार का दर्शन करा रही हैं। हाँ राम राम बेटा, बहुत सुंदर।